Now, this entire scheme will be till 31st March 2020 or till such a time the 7,500 crores of guarantee which is getting issued is exhausted. Either this or that, whichever is the earliest. The guarantee which is being given is up to 75% of the default amount, and this duration is for 3 years. The loan duration is for 3 years. So we hope to cover 25 lakh, the smallest of small MFI clients, which means MFIs are normally widely spread in the hinterland, which is really the smallest, towns, very small towns, and therefore we want to reach out to them, and that is best done through the MFI, and that is why we've taken this route. So there will be a joint lending group kind of a framework wherein the NBFC, which has a link with them, the MFI, will all be in the loop. But that is how we expect to reach the smallest of small borrowers. They could borrow it for any one of the purposes for which they would like to take money from the MFI. क्रेडिट गारंटी स्कीम ये बिल्कुल नई योजना आपके बीच में लेकर आए हैं, जिसमें इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से 25 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से इसको दिया जाएगा। 1.25 लाख रुपए तक का ऋण इसमें मिल सकता है और लगभग 25 लाख जो छोटे कर्जदाता हैं, उधारकर्ता हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी जो कैपिंग की गई है ऋण की, वो लोन फ्रॉम बैंक्स, उसको कैप किया गया MCLR +2%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। RBI की गाइडलाइंस जो निर्धारित हैं उसके अनुसार ही इंटरेस्ट रेट 2% कम होगा, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब रेट से कम होगा, निर्धारित रेट से 2% कम होगा। तो इससे भी उधारकर्ताओं को लाभ मिलेगा और इसकी जो समय अवधि है वो 3 वर्ष की होगी। मैक्सिमम लोन जो टेन्योर है इसका समय सीमा मैक्सिमम 3 वर्ष की होगी और 80% सहायता जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को वृद्धिशील उधार देने के लिए करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए करनी पड़ेगी, ये उसमें कहा गया है। और ये जो कर उधारकर्ताओं को दिया जाएगा ये बिल्कुल RBI गाइडलाइंस के अनुसार होगा। जैसे लेंडर्स के लिए जो गाइडलाइंस है, बोरोवर्स के लिए जो गाइडलाइन है JLG के अंतर्गत भी, और सीलिंग भी जो हाउस होल्ड पर है उसको भी इनकम, डेट और ये सारी बातें ध्यान में रखकर किया जाएगा। पात्र कौन हो सकते हैं ये एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। योग्य लोग कौन होंगे, पात्र कौन होंगे? अगर कोई डिफॉल्टर भी जिसका 89 डेज तक जिन्होंने अभी अपनी ब्याज की किस्त वापस नहीं की, डिफॉल्ट किया होगा, ऐसे उधारकर्ताओं को भी उसमें पात्र माना जा सकता है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। गारंटी इसमें 75% तक दी जाएगी और 3 वर्ष का उसके समय अवधि रहेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से होगी और इसमें कोई गारंटी फी चार्ज नहीं की जाएगी। इसमें लगभग 7,500 करोड़ रुपया का प्रावधान होगा और 31 मार्च 2021 तक इसकी अवधि है। या 7500 करोड़ पहले इस्तेमाल हो जाए तब 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। We move over to the 4th of the 8 relief packages that I mentioned. This pertains, and this is a totally new thing. We are trying to help revive tourism. We are extending financial support to more than 11,000 registered tourist guides, travel and tourism stakeholders. So this is a totally new one, as I said earlier. This scheme will cover about 10,700 regional level tourist guides who are recognized by Ministry of Tourism and tourist guides who are recognized by state governments. Travel and tourism stakeholders, which is literally the terminology used to talk about travel agents, I suppose, who are recognized by Ministry of Tourism, will also be covered here.
what do they get? They get 100% guaranteed credit of 10 lakhs for the TTSs who are agents or travel agencies, and 1 lakh for tourist guides who are licensed either by the regional or the state level authorities. Now, what is this credit being given to? It's really a retail kind of a loan wherein they can take this credit for whatever purpose they would want to use it for, whether it is for buying a vehicle, whether it is for any other expenditure that they may want to have to incur. So there are no processing charges. The waiver, a complete waiver will be given for any foreclosures or prepayment, and this would be administered by the Tourism Ministry. And the fund for this, just to draw your attention, is also included in that first announcement that we made, that other sectors which get 60,000 crore guarantee, this will also be one of that. ये है कुछ अहम अनाउंसमेंट्स वित्त मंत्री की तरफ से। 8 बड़े अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं, जिसमें से 5 अनाउंसमेंट्स कर दिए हैं वित्त मंत्री ने। क्रेडिट गारंटी स्कीम, जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। ELCGS स्कीम पर आपने एक्सटेंशन देखा है, 3 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब इसे 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। साथ ही हेल्थ केयर और कोविड से अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए भी 1.1 लाख करोड़ की स्कीम आई है, जिसमें 50,000 करोड़ की फंडिंग सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर से जुड़े इंफ्रा बनाने पर लगी जाएगी। क्रेडिट गारंटी स्कीम है 25 लाख इंडिविजुअल्स MSMEs के लिए, जहां पर MFIs माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जरिए पैसा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अब टूरिज्म सेक्टर के लिए भी कुछ स्कीम्स वित्त मंत्री अनाउंस कर रही थी, वहां पर भी करेंगे फोकस। पर जल्दी से एक बार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, बस 1 ही मिनट बाकी है बाजार बंद होने के लिए। और इवेंटफुल डे रहा है इस हफ्ते का पहला दिन। ओपनिंग सेशन में हमने नए रिकॉर्ड्स आते हुए देखे और वहां से करीब 100 अंक फिसल कर 15,800 के ऊपर, मोर इंपॉर्टेंटली, आप निफ्टी को क्लोज होते हुए देख रहे हैं। तो जो अनिल जी ने कहा था 775 800 पर अच्छा सपोर्ट है निफ्टी का, वो सपोर्ट लेते हुए निफ्टी क्लोज आउट होने की तरफ बढ़ रहा है। निचले स्तरों से रिकवर होकर एकदम सपाट क्लोजिंग की तरफ बैंक निफ्टी भी जाते हुए दिख रहा है, उन्हीं लेवल्स के आसपास जहां पर अनिल जी ने कहा था कि एक रेंज है बाजार की। डिवीज लैब, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, ये हैं आपके टॉप गेनर्स जहां तक निफ्टी का सवाल है। साथ ही अच्छा सपोर्ट मिला ONGC, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, सिप्ला और JSW स्टील की तरफ से। एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो ज़्यादा स्टॉक्स गिरे हैं, कम स्टॉक्स बढ़े हैं, इसलिए आप 40 स्टॉक्स की तेजी देख रहे हैं, पर कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई है। सिर्फ एक TCS है जो 1.25% कमजोर आपको दिखा है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पर 0.1% की गिरावट है अगर आप हैवी वेट से देखें। उसके अलावा HDFC लाइफ आज जरूर सुस्त था, टाइटन पर आपने 1.5% की कमजोरी देखी है। कोल इंडिया, श्री सीमेंट, HCL टेक और बजाज फिनसर्व, यहां पर भी आपने कमजोरी देखी है। फायदा कारोबार में देखें तो आपने बड़ा मूव देखा है नैल्को नतीजों से पहले, और अभी जो वित्त मंत्री के अनाउंसमेंट्स आ रहे थे उसके बाद बंधन बैंक, CSB बैंक, उज्जीवन और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, यहां पर भी तेजी आती हुई दिखी है। बट फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर इंतजार करते हैं। प्रोविजनल बेसिस पर 15,824 पर निफ्टी और 35,400 के करीब आपको निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। आइए वापस